ملنے رہیں گے. یہ جو خرافات سماج میں ہو رہے ہیں, یہ جو بڑھاپے میں رسگلے کھلائے جا رہے ہیں بہو کی طرف سے, رسگلے جو ڈالے جا رہے ہیں منہ میں, یہ صرف زمین کے لالچ ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت بڑھاپے میں جو عزت ہمیں مل رہی ہے ہمیں جوانی میں عزت نہیں ملی. میری بہو بہت اچھی, کئی مہینے تک میری خدمت کرتی رہی, مگر پھر وہی شخص بول پڑا کہ حضرت جیسے ہی زمین لکھوا کر بیٹا اور تیری بہو جیسے لکھوا کر گھر لا کے پٹکا ہے, اس کے بعد سے ہفتہ تک میں پخانہ پہ سویا رہتا ہوں, نہ تو بہو میرے اوپر تاکتی ہے نہ میرے لیے میرا بیٹا کھڑا رہتا ہے. یہ اسی کی نحوست ہے. آپ نے بیٹے کو زمین دیا اور بیٹی کو محروم کر دیا. آپ نے بیٹی کے حصے کو مارا ہے جس کی بنیاد پر اس کی نحوست آپ کے چہرے سے نمایا ہے. اور ابھی کیا ہوا ہے, آپ کے بدن میں کیڑے پڑیں گے. جو آدمی کسی کا حق مارتا ہے وہ جاننے کی اللہ کسی کے حق کو چھیننے والے کو سزا زمین پر ہی دے دیتا ہے. پہلے آپ کو زندگی میں سزا ملے گی. اللہ کے واسطے آپ اپنی بیٹی کے حقوق کو نہ دبائیں. بیٹی بڑی محبت کی ہوتی ہے. بیٹی اپنے باپ کے گھر کو لبیک کہہ کر جب جائے گی تو کیا امید رکھے گی؟ یہی امید رکھے گی نہ کہ میرا شوہر بھگا دے گا کہ میرا باپ زندہ ہے, میرا شوہر مارے گا تو میرا بھائی زندہ ہے, میرا شوہر مجھے گھر سے نکالے گا تو میں اپنے باپ اور بھائی کے گھر آ کے رہوں گی. اور جس دن اس کا بھائی اپنے بہن کے حصے کی زمین کو دبا لے گا, آپ بتائیے کہ اس کو سر چھپانے کی جگہ کون دے گا؟ اس بیٹی کو رکھنے کے مکانات کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے جہیز کے کاروبار کو اگر ہم بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بند کرنے کا سب سے بیسٹ فارمولا یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے حقوق دینا شروع کر دیں, اپنی بیوی کے حقوق دینا شروع کر دیں. آج بیٹیوں کو ستانے کا جو ماحول مسلمانوں نے قائم کیا ہے, مودی جی کو بھی گھبراہٹ ہو گئی. مودی جی کو یہ جرأت اس لیے ہوئی صاحب, ورنہ مودی جی اتنا گمبھیر نہیں ہوتے. ان کو جو دیش کے وزیر اعظم ہے اور وزیر اعظم دیش کا سب سے بڑا سنجیدہ نیتا ہوتا ہے, ان کو سماج کے ہر طبقے کی فکر ہوتی ہے. یہ سماج کیوں برباد ہو رہا ہے, وہ سماج کیوں تباہ ہو رہا ہے. بارہا شکایتیں ملتی رہی کہ مسلمان طلاق دینے میں بہت ایکسپرٹ ہے, مسلمان طلاق دینے میں بیویوں کو مارنے میں بڑا ماہر ہے, بہت زیادہ مہارت ان کو ملی ہے. مسلمان اگر کھانے میں کمی ہو جائے تو بیوی کو پیٹنا شروع کرتے ہیں, تھوڑے سے کپڑے پریس کرنے میں کپڑا جل جائے تو بیوی کو گالی دے دیتے ہیں. مسلمانوں نے یہ عادت بنا لی ہے, بیوی کو پیٹنا مارنا ان کی فطرت بن چکی ہے. حکومت کو جب یہ بات سمجھ میں آئی تو ان کو عورتوں کے تعلق سے ایک الگ سے قانون لانا پڑا. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, آج ہم کو کسی اور حاکم و حکومت کی کوئی حاجت نہیں ہوگی اگر ہم اسلام کے قانون پہ عمل کر رہے ہوتے. اسلام کے پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیوی سے محبت کے آداب دنیا کو بتائے, آج تک پوری دنیا میں کوئی نیتا ایسا نہ ہو سکا جو بیویوں اور بیٹوں کے حقوق کی باتیں اتنی کی ہو, اس طرح طریقے چلائی ہو. یہ تو اسلام کے پیغمبر کی مہربانیاں ہے. اسلام کے پیغمبر نے پوری دنیا میں سب سے پہلے بیٹوں کو بچانے کی آواز بلند کی, سب سے پہلے بہو کو حقوق دینے کی باتیں آپ نے کی, سب سے پہلے بیٹی سے محبت کے آداب دنیا کو سکھائے. ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں اسلام کے پیغمبر نے سب سے پہلے بتائے. مگر یہ ظالمانہ حکومت کو کیا پتا اسلام نے دنیا کو کیا پاٹ پڑھایا, اسلام نے دنیا کو کیا فارمولہ دیا, اسلام نے بیوی اور بیٹی کے حقوق کیا بتایا ہے. ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنی بیوی, اپنی ماں, اپنی بیٹی, اپنے بہن سے ایسی محبت اور ان کے حقوق کو دے کر ایسا ماحول استھاپت کرتے کہ دنیا کے ہر شعبے کے نیتا کو یہ کہنا پڑے اپنے سبھا سے, ایک دنیا والوں اگر اپنے سماج کو بچانا چاہتے ہو تو مسلمانوں کی طرح اپنے سماج میں قانون نافذ کرو. دیکھو مسلمان بیوی سے کتنی محبت کرتے ہیں, دیکھو مسلمان بیٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں, دیکھو مسلمان اپنی بہو کا کتنا احترام کرتے ہیں. اللہ کی قسم, جس دن ہم نے بیٹی کو ان کا حق, بیوی کو ان کا حق, ماں کو ان کا حق اگر ہم نے قاعدے سے دے دیا, ہم کو کبھی کورٹ کچہری جانے کی حاجت نہیں ہوگی. ہمیں کسی دارالفتہ کے مفتی صاحب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ہم ایک بار اسلام کے قانون کو سمجھ کر اور اس کے آداب پہ اپنے سماج کے ہر طبقے کو جینے جلانے کا ہم نے راستہ فراہم کر دیا, قسم خدا کی اسی دن سے ہمارے معاشرے میں روشنی آ جائے گی. ایمان کا جو روح, ایمان کی جو روح اور روشنی ہوتی ہے وہ ہمارے سینوں میں چل جائے گی, اور اس روشنی کے آدھار پہ صرف ہم اجالے میں نہیں جیئیں گے بلکہ اپنے سماج کو بھی اجالے میں جینے کی ہم دعوت دیں گے, اپنے سماج کے ہر طبقے کو ہم دعوت دیں گے. یہ آپ تو کیوں بھٹکتا ہے؟ عزت چاہتے ہو تو اسلام قبول کر, عزت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لے, عزت چاہتے ہو تو پیغمبر کی بات مان, عزت چاہتے ہو تو سید الانبیاء کے فرمان پہ عمل کر. کیونکہ اسلام کے پیغمبر نے ہی بیٹیوں کے حقوق اس طرح سے دیے ہیں کہ بیٹیاں ہماری عزت کے ساتھ گھر میں رہے. بیٹیوں کی آزادی کیا ہے کہ وہ گھر میں رہے. بیٹیاں بازار میں چلی جائے یہ
आजादी नहीं है। आजादी का गलत मफहूम ये टीवी वाला बता रहा है। टीवी में क्या हो रहा है आजकल, आप किसी भी चैनल को देख लीजिए, हर चैनल में 24 घंटे सिर्फ इस्लाम मुखालफत की बात है। वो खरीदार मौलवी नुमा शख्स को बिठाकर 5,000 7,000 में गालियां सुनाता है, उनमें से 2-4 को तो 2-4 दिनों में जूते भी लगे हुए हैं, फिर भी वो है कि मानने को तैयार नहीं। उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो चुपचाप सारे टीवी डिबेट को तर्क करके चुपचाप मस्जिद में आकर कुरान पढ़ता और सड़क पे घूम घूम कर कुरान को अपने किरदार से दुनिया को कुरान को पढ़ने की दावत देता। ये सबसे बड़ा फैसला होता। मगर इनको गाली सुनने का शौक चढ़ चुका है। कभी जूता खाता है, कभी लात खाता है, कभी औरतों से पिटाई खाता है। मेरे तरफ मौलवी होता तो जो औरत उनको वहां पर बेइज्जत की थी, वो मौलवी साहब को हमारे समाज का मुसलमान बनकर वो हमारी तर्जुमानी करने जो गए थे, हमारे तरफ मौलवी होता। इस्लाम ने औरतों की इज्जत की बातें की है, मगर इस तरह से भी सब्र करने की इजाजत नहीं दी है कि आप जूते खाते रहिए और आप उनसे मोहब्बत की बातें करते रहिए। 2-4 जूते तो पहले मैं लगाता, उनको तरीका सिखाता कि 4 यहूदी पहले अपने घर में रहकर पर्दे में रहना सीख। जिस आजादी की बातें तुम डिबेट में बैठकर कर रही हो, टीवी डिबेट में कर रही हो, ये आजादी नहीं, आजादी के नाम पर डकैती हो रही है। बेटियों की आजादी के हवाले से दुनिया ने क्या मैसेज दिया कि जींस पहनाओ बेटियां आजाद होगी, टी-शर्ट पहनाओ बेटियां आजाद होगी, कॉलेज में पढ़ाओ बेटियां आजाद होगी, स्कूल भेजो बेटियां आजाद होगी, एयरपोर्ट में एयर होस्टेस की हैसियत से उनको डिप्यूट करो बेटियां आजाद होगी, शॉपकीपर बनाओ उनको बेटियां आजाद होगी। अब इस आजादी का गलत कॉन्सेप्ट टीवी में बैठकर उन लोगों ने दुनिया को पढ़ा दिया। अब नतीजा क्या निकला, जिसको पढ़ने का शौक नहीं उसके भी पीछे लोगों ने दिमाग लगाया और पढ़ाने का ऐसा फार्मूला राइज किया, बेटी को बीवी को पढ़ाते इलाहाबाद पहुंचा दिया, इलाहाबाद से वहां पे एसडीएम बना दिया। एसडीएम बन के 3-4 साल उसकी खूब कमाई खाता रहा, बड़े गुण बीवी की गाता रहा। बीवी हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी, क्या बीवी बन गई, पीएचडी से एग्जाम पास कर गई, मेरी बीवी आईएएस बन गई, मेरी बीवी डीएम बन जाएगी बाद में, अभी एसडीएम है, 5-5 बॉडीगार्ड रहते हैं। 5-4 साल तक उनकी बीवी की कमाई खाने वाला शख्स, जब उसकी बीवी का अफियत दूसरे से हो गया, जब दूसरों के साथ रातें गुजारने लगी उसकी बीवी, तब उसकी आंखें खुली। अब चीख कर रो कर हुकूमत को दावत दे रहा है कि देख मुझे बचा ले, मेरी बीवी को लौटा दे, मेरी बेटी को लौटा दे, मेरी बच्चियों छोटी बच्चियों को बचा ले। मैं कहना चाहूंगा, कल तक हम लोगों ने चीख कर दुनिया को यह दावत दी कि बीवी को पढ़ाने से पहले, बेटी को पढ़ाने से पहले, बेटों को पढ़ाने से पहले उनको इंसान बनाया जाए, उनको आदमी बनाया जाए, उनको हया वाला बनाया जाए, उनको बहाया बनाया जाए। दुनिया ने कहा देख मौलवी पागल हो गया, देख मौलवी दीवाना हो गया, देख मौलवी दकियानूसी है, ये मौलवी फंडामेंटलिस्ट है, ये मौलवी दुनिया परस्त है, ये इस मॉडर्न जमाने में 21वीं सदी में पर्दे की बातें कर रहा है, ये इंसानियत की बातें कर रहा है। मगर जब पानी सर से ऊपर हुआ, उसकी बीवी जब दूसरों के साथ रातें गुजारने लगी, उसको भी कहना पड़ा कि मैं अगर अपनी बीवी को एसडीएम बनाने से पहले उसको सही तरीके से बीवी बना दिया होता, तो आज इस थाने से उस थाने में, इस कचहरी से उस कचहरी में, इस नेता के दरवाजे से उस नेता के दरवाजे पर जाकर रो कर बेटी और बीवी को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कहना चाहूंगा साहब, इस्लाम भी एक ऐसा मजहब है जिसने तालीम से पहले तरबियत की बातें की है, एजुकेशन से पहले तरबियत की बातें की है। तरबियत कैसी, बेटी को कॉलेज का बस्ता थमाने से पहले उनके सर पर पहले हया का बस्ता थमाया जाए, बेटी को स्कूल कॉलेज भेजने से पहले उनको हया का मतलब और उनको फायदा समझाया जाए। अगर आप नहीं समझाएंगे तो नाम आपकी बेटी का फातिमा होगा, मगर 5 साल के बाद फातिमा नाम रखने के बावजूद आपके समाज की सबसे बड़ी बेहया आपकी बेटी होगी और दुपट्टा लहरा कर फेंक कर कहेगी अब्बा आप भी दकियानूसी हो, अब्बा मैं कॉलेज में पढ़कर एमबीबीएस डॉक्टर बन गई और अभी आप दुपट्टे के चक्कर में पड़े हुए हैं, अब्बा कोई जरूरत दुपट्टे की नहीं। ये तो मौलवी लोग बोला करते हैं, मौलवी की जबान बाबा आप ही बोल रहे हैं, फिर बदतमीजी इस तरह बढ़ जाएगी। एमबीबीएस की डिग्री धारी बेटी दूसरों के साथ रातें गुजारने पर मजबूर हो जाएगी, कॉलेज के प्रोफेसर बनने के बाद मामूली चपरासी के साथ रातें गुजारेगी। अल्लाह की कसम हम खूब पढ़ाए बेटी को पढ़ाने की ममानियत इस्लाम में नहीं है। इस्लाम ही दुनिया में ऐसा मजहब है जिसने तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमात का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी जहां बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, वहीं बेटियों को भी पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर पढ़ाने से पहले बेटी को कहा जाए बेटी कहां चली
दुपट्टा तेरा क्यों घर पे रह गया? बेटी ये लिबास तेरा नहीं, ये लिबास तेरा ये है निकाब, ये बुर्का तेरा लिबास है बेटी, ये जींस तेरा लिबास नहीं, ये टी शर्ट तेरा पहनावा नहीं। ए मेरी बेटी, तुम मेरी बेटी हो, तुम अफजल की बेटी हो, तुम मुदस्सिर की बेटी हो, तुम फारूक की बेटी हो, तुम इस्लाम की बेटी हो। ए मेरी बेटी, इस तरह से तुम दुपट्टा छोड़कर जो मार्केट जाओगी, तुम आजाद नहीं होगी, बल्कि आजादी के नाम पर कुत्ते तुझे भौंकेंगे। कोई तेरी आंख देखकर खड़ा होंगे, कोई तेरा सीना देखकर तेरे पीछे भागेंगे, कोई तेरा रुखसार देखकर, तेरा जुल्फ देखकर तेरी दीवानगी में अपनी जान देने की बातें करेंगे। उसके बाद ए मेरी बेटी, समाज खराब होगा, माशरा खराब होगा, तहजीब तमद्दुन खराब होगी। इसलिए ए मेरी बेटी, इससे पहले कि आजादी के नाम पर ये दुनिया वाले भेड़ियों की तरह तेरे जिस्म का शिकार कर ले, आप तुम मेरी बेटी इस्लामिक बेटी बन जाओ, असली आजादी का मजा तुझे घर पे मिल जाएगी। ए मेरी बेटी, नकाब पहनकर तुम मार्केट जाओगी, कोई दिल में 50 बुजुर्ग रखे हुए भी तेरे बगल से गुजर जाएगा, वो कभी तेरे बारे में गलत सोच भी नहीं पाएगा। ये कौन है, कहाँ जा रही है? एक ही रास्ता है। आजादी का मतलब यह है, आजादी का मतलब है कि बच्चों को घर पे रखा जाए। आजादी का मतलब है उनको निकाब पहनाकर उनको फ्री छोड़ा जाए, तो उनको बेहया बनने के लिए जींस और टी शर्ट नहीं दे रहा है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ साहब, आज हम में से अक्सरों का दिमाग की फैसला कर रहा है कि बेटी मेरी टीटी एग्जाम दे। अभी मैं 2 दिन पहले मैं भी चूंकि बीपीएससी का टीचर बनने वाला हूँ, अभी इत्तेफाक से अगर आपकी दुआएं मिल गई तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मगर जब मैं फॉर्म फिलअप करने गया तो वहाँ देखा कि लाइन लगाना पड़ा मुझे। मैं घबरा गया, मैं बोला साहब मैं मौलवी आदमी और इतनी देर लंबी लाइन पे खड़ा, क्योंकि वहाँ कौन जानेगा कौन सा खतीब, कहाँ का मुकर्रिर, कहाँ का पीएचडी होल्डर, कौन सा मुफ्ती, कौन सा क्या है, कुछ नहीं समझ में आला। वो तो वो यही समझेगा कि हमारी तरह ये भी है। बोलता थोड़ी सी मैं अपनी कदम आगे बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया आगे, तो एक साहब कह रहा है पीछे चल, मुझे पीछे कर दिया। मैं नंबर मेरा आया रात के 9:30 बजे, वहाँ देखा साहब छोटी छोटी बच्चियां, बड़ी बड़ी बच्चियां, शादीशुदा बच्चियां वहाँ पे पढ़ी है, सब सीटेट पास, स्टेट पास, सब फॉर्म भर रही है, सबको शौक है टीचर बनने का। अच्छी बात है, टीचर बनाना, सीटेट पास होना। अगर आपकी बच्ची पास भी तो मैं दुआ करता हूँ कि इससे बड़ा एग्जाम बेटी पास कर जाए। ये यूपीएससी की तैयारी में आपकी बेटी अच्छे रैंक आ जाए, उससे कोई मजाका नहीं हमको। मगर सबसे पहली चीज जो मैसेज इस्लाम देता है वो तालीम से पहले तरबियत का मैसेज। तरबियत की जिम्मेदारी बाप की होती है, स्कूल की नहीं। तरबियत की जिम्मेदारी माँ की होती है, कॉलेज की नहीं। तरबियत आपकी बेटी घर में पाएगी, कॉलेज के मास्टर से तरबियत की अपेक्षा उम्मीद करना बेकार है। वहां तो फार्मूला बताया जाएगा, वहां तो किताबें सिखाई जाएंगी, वहां तो जबान सिखाए जाएंगे, वहां पर तो किताब के फार्मूले पर रिसर्च कराए जाएंगे। अगर बच्चों को तहजीब सिखाना है तो माओ को आगे आना होगा। एक दिन भी बेटी मोबाइल हाथ में रख ले, आप अपनी बेटी को पहले समझाएं, मेरी बेटी अभी तेरी शादी हुई नहीं, ये मोबाइल तो क्यों डिमांड कर गई अपने अब्बा से, क्यों मोबाइल मांग रही हो? बेटी कहेगी कि मैं अब ऐसे गेम खेलने के लिए। आजकल तो बहाना मिल गया कि यूट्यूब से तालीम पाने के लिए। नहीं साहब, जिसकी बेटी किताब से नहीं पढ़ती वो यूट्यूब से क्या खाद पड़ेगी? वो एजुकेशन के लिए तालीम के नाम पर वो आपसे मोबाइल महंगी कीमत में खरीदवा लेगी, 2-3 दिन यूट्यूब से 1-2 चैप्टर पढ़ेगी, उसके बाद फेसबुक अकाउंट ओपन करेगी, उसके बाद उसको देखिए कीजिए व्हाट्सएप उसी को मिलेगा, और उसके बाद इंस्टाग्राम उसके खुल जाएंगे। धीरे धीरे वो टिकटॉक वीडियो बनाएगी, नाच करेगी, डांस करेगी, 50 फ्रेंड उनके होंगे। इससे पहले कि हमारी बच्चों के 50 फ्रेंड हो जाए, मोबाइल उसके हाथ से छीन ले। और अगर नहीं देती है अपने हाथ से मोबाइल, शादी से पहले अगर आपने अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल देखा, किसी गैर का भी मोबाइल पकड़े हुए, बिना मोबाइल का मैं कहता हूं इसमें कोई डर हमको नहीं है। मैं तो डरने वाले खतीबों में से हूं नहीं, चूंकि सच बात आपका पैसा लेकर भी सीने पे चढ़ के बता के जाऊंगा, मुझे डर नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर जूता आप पहने हैं, उसी जूता को खोलकर 5 जूता पैदल पे अपनी बेटी के सर पे पहला दिन मार दीजिए, 5 जूता बेटे के सर पे मारिए। नारायण, अभी तेरी शादी नहीं हुई, तुम मोबाइल मांग रही है, क्या करेगी मोबाइल? एक दिन आप मांगेंगे, उसके बाद से दूसरे के मोबाइल से बात करने में उसको डर लगेगा। अब मोबाइल के नाम से सपने में वो डरा करेगी, वो जान लेगी कि अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट है, अम्मी बहुत सख्त है, घर का कानून बहुत ज्यादा सख्त है, इसलिए मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? अभी बच्ची की शादी हुई नहीं, शादी से पहले गिफ्ट मिलता है। कौन? लड़का है दिल्ली में, शादी करेगा ईद के बाद, बकरीद के बाद, मुहर्रम के बाद, और वहीं से फोन भेजा है किसको? अपनी, अब क्या बोलते हैं उसको आप लोग, एंगेजमेंट जिससे हो जाती है, शादी होने वाली होगी,
मंगेतर, बताइए ये कौन सा फार्मूला आ गया? इस्लाम में अंगेतर मंगेतर का कोई तस्वुर ही नहीं है। ये मंगेतर के नाम पे जो 15,000 का मोबाइल भेजता है, सासू माँ भी पूरे मोहल्ले में दिखाती है कि देखिए मेरा दामाद कितना अच्छा है, कितना अच्छा दामाद, अभी शादी हुई नहीं है 15,000 का मोबाइल भी दे दिया है। उसको पता नहीं कि 15,000 का मोबाइल जो लड़का दिया है, यही मोबाइल हमारी बेटी के रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी हो जाएगा। अब वो लड़का नाश्ता बनाया तब फोन करे, दोपहर बाद तब फोन करे, रात में 11 बजे तक बात करे, 24 घंटे उसी फोन पे लगा रहता है, पूछते रहता है उस लड़की से खाना खाई, नाश्ता खाई, कहाँ गई थी, कहाँ से आई हो, घर पे कौन आया है, कौन सा बेडशीट बिछाई हो, कब नहाने गई थी, क्यों स्कूल गई थी, 50 तरह का क्वेश्चन पूछते पूछते 6 महीने के अंदर शादी से पहले वो लड़का उस घर की तमाम चीजों को जान लेता है। इसके बाप की औकात क्या है, इसके भाई की औकात क्या है, इसका चचा कितने पानी में रहता है, ये लड़की क्या कर सकती है। उसके बाद कुर्बानी आते आते जो शादी की तारीख थी, अगले को बुला कर कहता है कि जाके बोल दीजिए हम उसके घर शादी नहीं करेंगे, उसके घर का माहौल सही नहीं है, उसकी बेटी बदतमीज है, उनके घर दूसरे लड़कों का आना जाना रहता है। मैं कहना चाहूंगा जब तक शादी नहीं होती 50 लाख रुपया आपका दामाद होने वाला कमाने वाला हो तो क्या हुआ, आपकी बेटी के नसीब में अगर फकीर है वही फकीर सही, मगर वो लुच्चा दामाद आपकी बेटी की जिंदगी में बेहतर नहीं हो सकता जो आपकी बेटी से 24 घंटा शादी से पहले बात करना चाहेगा। आप ताले लगाइए और ये माहौल बंद कीजिए और उन लड़कों से कहिए कि बाबू तुम, मैं जानती हूँ कि तो अब माँ कहे कि बेटा मैं जानती हूँ कि तुम दिल्ली में ठेकेदार हो, वही ठेकेदारी करो, जब तक तुम निकाह नहीं करोगे हमने मेरी बेटी के साथ, तब तक तेरा सामान, तेरा मोबाइल, तेरा दिया हुआ कपड़ा मेरी बेटी के लिए मैं नहीं समझती हूँ कि जायज हो सकता है। इसलिए बेटा तेरा मोबाइल तुझे मुबारक हो, तुम जल्दी से निकाह कर लो, मोबाइल क्या मैं तो अपनी बेटी तेरे हवाले कर दूंगा, मगर पहले तुम निकाह करो। और जब तक निकाह में जब तक बेटी नहीं जाए, सामने वाले की एक चीज भी हम अपनी बेटी के लिए हराम समझे। जब आप ये फार्मूला राइज करेंगे, आप गरीब भी होंगे तो क्या हुआ, आप मजदूर भी होंगे तो क्या हुआ, आप लाचार और मुफलिस भी होंगे तो क्या हुआ, आप झोपड़पट्टी में रहे, आपकी बेटी उसी झोपड़पट्टी में रहे, उसी झोपड़पट्टी में रहकर अगर सामने वाले लड़के को आपने ये मैसेज दिया कि जब तक तू मेरी बेटी से निकाह नहीं कर लेगा तब तक मेरी बेटी तुमसे बात नहीं करेगी, अल्लाह की कसम आपके गांव के बड़े बड़े करोड़पति के बेटे भी आपके यहाँ रिश्ते की तलाश में आएंगे। वो कहते फिरेंगे काश मैं इनके घर का दामाद बन जाऊं, क्योंकि ये आदमी गरीब जरूर है मगर इस गुर्बत में भी अपनी बेटी को इज्जत से रखा हुआ है, ये गरीब जरूर है मगर अपनी बेटी को बदतमीज नहीं बनाया है। उस वक्त आपकी बेटी और आप गुर्बत के माहौल में रहकर भी भाई लड़के दामाद भी आपके यहाँ घुटने टेक कर बात करेंगे। वो जान देंगे कि पैसा मेरे पास है तो क्या हुआ, इज्जत किसी गरीब के पास है, माल मेरे पास है तो क्या हुआ, इज्जत किसी गरीब के पास है। ये मैसेज है आप समाज के लिए, ये जरूरत है समाज के लिए, इस पर हमारे समाज के दूसरे लोगों को अमल करने की जरूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारी जरूरत इस बात की है कि हम पहले इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह फिर उसके बाद माहौल बन जाएगा, माहौल बनेगा, दुनिया